अनूप जी भी आ गया है। Yes, अनूप sir. जी। Yes, sir, I'm हाँ, there. अनूप जी, वेलकम। Thank you, Hello. वेलकम sir. वेलकम Thank you, Hello. वेलकम। God. I- सीइंग यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंड यू लुक द सेम। No, sir, I've grown younger. Yes, yes. चलिए, ग्रेट, वेलकम। Anyway, हाँ, कभी सावन जी शुरू मुलाकात करें। करते हैं। Sure, sir. हाँ, Again, good evening, everyone, and बताइए। a very warm welcome to all the members of Tri-City Photo Art Society. It gives me an immense pleasure to welcome you all the second session of our webinar series, that is the Art of Photography. As you all experienced in the first session, it was enriching journey filled with excitement, knowledge, and valuable learning. The basic aspect of the photography were explained with remarkable clarity and expertise. Mr. Vinod Chauhan, sir, vast experience was evident throughout the session, clearly demonstrating why he is such a successful and accomplished photographer. His passion, practical insight, and simple yet effective teaching style made the webinar highly engaging, inspiring, and easy to flow. I'm sure today's session will also be more insightful with many new techniques, practical tips, and creative ideas that will help us to take our photography skills to the next level. So without taking much of your valuable time, let us extend a warm welcome to our mentor and guide, Mr. Vinod Chauhan, sir, and begin another excitement learning experience. Very welcome, sir, Vinod Chauhan, sir. Before going ahead, let me give a brief introduction about the Vinod sir. Mr. Vinod Chauhan is an internationally acclaimed photographer, educator, and mentor with over 1,600 international and national awards and 15,000 plus international and national acceptances to his credit. His work has been exhibited in more than 60 countries, earning him recognition among the world's leading photographers. He was ranked world's number two in acceptances in International Union of Photographers (IUP), China all-time honor list, and was ranked world's number 8 top travel photographer by the Photography Society of America, that is PSA, in Who's Who in photography. Mr. Chauhan is the first and the only photographer in the world to be conferred and converted honor AIUP distinction by IUP China. He has also been honored as Best Overseas Photographer by IUP China, serves as Ambassador for India under IUP China Heritage and Culture Exchange Program. He is the recipient of 100 plus Best Entrant Awards and has been honored with the prestigious FIAP Blue Pin on several occasions as the Best International Author, a recipient of 40 plus international honors and distinctions. He has also served as an international jury member for numerous international photography salons and is the former webinar director of the Photographic Society of America. Passionate about the promoting the art of photography, he is the chairman and co-founder of Tri-City Photo Art Society, Chandigarh, where he has mentored and inspired hundreds of photography enthusiasts throughout workshops, webinars, photo walks, exhibitions, and education initiatives. Please join me in warmly welcome Mr. Vinod Chauhan, Chairman, Tri-City Photo Art Society, and the mentor for tonight's Master, the Art of Photography. Thank you, and I wish everyone a wonderful and enlightening session. Thank you very much, Savan, for the lovely introduction which you had given me. First and foremost, I would like to give a warm welcome to everybody who has joined today's webinar and especially making it overseas. Thank you very much, Dr. Charanjit ji, who's joined us from Melbourne. It is around 8:30 in the midnight and at 5-degree temperature. He is joining this and showing the zeal to learn art of photography. Anup Suji is joining after a long, long time. So is Sandeep Saini ji. So lot many people have joined us. So I thank you from the deep core of my heart. Not taking much of the time. दिस वेबिनार बेसिकली जो पहले हुआ था वो मैंने उसमें आपको 12 एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी बताए थे और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बेसिक या रूल्स ऑफ कंपोजिशन फोटोग्राफी के हैं। जिन्होंने ज्वाइन किया था उनके लिए और स्क्रीन दिख रही है। हाँ जी, हाँ जी।
Yes, sir. अच्छा, एंड आई एम क्लियरली ऑडिबल टू एवरीबडी? Yes. अच्छा, तो लास्ट टाइम जो मैंने 12 एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी के बताए थे, उसमें मैंने ये बताया था कि हमारी फोटोग्राफी में लाइन है, शेप है, और जो कलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फोटोग्राफ को बनाने के लिए। स्पेस के बारे में बताया था, टेक्सचर की फॉर्म होनी चाहिए। तो जो एलिमेंट्स फोटोग्राफी के थे वो मैंने इसमें जिक्र किया था। फाइन आर्ट फोटोग्राफी के बारे में बताया था कि जो क्रिएटिव हमारा एक आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन होता है, उसका विजन होता है, और वो कैसे अपने इमोशंस को, कॉन्सेप्ट को पोर्ट्रे कर सकता है। सो बेसिकली दैट इज नोन एज फाइन आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। एंड कितना क्रिएटिव है, व्हाट ही थिंक्स ऑफ, हाउ ही exhibits and portrays his ideas. सो दैट इज अगेन व्हाट यू कॉल अ फाइन आर्ट फोटोग्राफी। तो जो 12 एलिमेंट्स मैंने बताए थे, क्विकली मैं उसको रीकैप कर रहा हूँ। फोटोग्राफी में हमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट इम्पैक्ट था, कि आपकी फोटो के ऊपर कैसा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। देखने के बाद कोई बंदा उसको वाव बोलता है, सो दैट वाव इम्पैक्ट इफ इट कम्स टू द फोटोग्राफ, सो दैट इज अ गुड फोटोग्राफ। और टेक्निकल एक्सीलेंस आपकी होनी चाहिए, फोकस अच्छा होना चाहिए, शार्पनेस होनी चाहिए, वेल इट शुड बी वेल बैलेंस्ड, और उसका कलर अच्छा होना चाहिए। आंखों को चुभने वाला कलर ना हो, कलर की हार्मनी अच्छी बनी रहे, और नॉइज और ग्रेन्स भी उस फोटो में ना हो, नीट क्लीन इमेज हो, तो वो एक अच्छी होती है, तो वो एक टेक्निकल एक्सीलेंस में आता है। देन हाउ क्रिएटिव यू आर इन क्रिएट मेकिंग अ फोटो। सो दीज वर द वाटर ड्रॉपलेट्स। जो कोविड के दौरान जब फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड थी, तो इंडोर ये भाटिया जी से सीखी थी। तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स उस वक्त के है। आप इनोवेशन कैसी करते हैं, क्या प्रॉप्स यूज करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट्स कैसे है, और कितनी एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं। सो दैट इज क्रिएटिविटी। कलर बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आपके सारे टोन बैलेंस हो। जैसा मैंने पहले बताया, आंखों को चुभने वाला कलर ना हो, एक दूसरे से ब्लेंड कर रहे हो कलर्स। सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पांचवा एलिमेंट था, कि मेन फोकस हमारा पिक्चर में कहाँ जा रहा है। जैसे इस पिक्चर में दिख रहे हैं सब कुछ, कलर्स दिख रहे हैं, लोग आदमी पब्लिक बैठी हुई दिख रही है होली खेलते हुए, पर फोकस हमारा एक ही सब्जेक्ट के ऊपर है। तो सेंटर ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडोर्स की बात अलग है, पर जो नेचुरल लाइट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गोल्डन आवर्स रहते हैं, सनसेट से बाद का और सनराइज से पहले का। दैट इज द मोस्ट आइडियल टाइम फॉर एनी फोटोग्राफर टू क्लिक फोटोग्राफ्स। हार्श लाइट में कोई फोटो ना ले, डायरेक्शनल लाइट और भी अच्छा एक खूबसूरती फोटो को दे देती है। सब्जेक्ट बड़ा पावरफुल होना चाहिए, विच इज द सेवंथ एलिमेंट फॉर अ गुड टेकिंग अ गुड फोटोग्राफ। इसमें मीनिंगफुल कनेक्शन होना चाहिए, इंटेंट अच्छी होनी चाहिए, और स्टोरी बड़ी अच्छी डिपिक्ट हो रही हो। सबसे इम्पोर्टेंट एक एलिमेंट जो बन जाता है, जो आगे कंपोजिशन में भी आ रहा है, रूल्स ऑफ कंपोजिशन में। आप एक कोई भी पिक्चर को कैसे कंपोज करते हैं, सब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, कैसे रूल्स में लाते हैं, लाइटिंग कैसी है, कलर बैलेंस कैसा है, अगर ये सब जो लोगों का सब चीजों का मिश्रण ठीक बनता है, तो वो कंपोजिशन आपकी बड़ी स्ट्रांग बन जाती है। और एक ये मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल भी होनी चाहिए आपकी। सो बेसिकली एक व्यूअर कहाँ अटकता है, कहाँ देखता है, कहाँ विचार विमर्श करता है, अगर वो कंपोजिशन आप क्रिएट कर सके, तो दैट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आपका एक अलग स्टाइल हो, आप किस तरीके से फोटो लेते हैं, स्टिल्स फोटो लेते हैं और स्टिल्स में आप अपने सब एलिमेंट्स को कैसे डिस्प्ले करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि आप कौन सा जॉनर ले रहे हैं, एडिटिंग कैसी कर रहे हैं, और सब्जेक्ट को कैसा ट्रीट करते हैं। सो बेसिकली वो आपके स्टाइल में आ जाता है। टेक्निक अगेन, आप कौन सा टेक्निक लेते हैं। क्रिएटिविटी है, जैसे ये क्रिएटिव शॉट्स होते हैं जिनमें मल्टीपल इमेजेस को जोड़कर बनाया जाता है, विच दिस जॉनर आई एम नॉट फॉलोइंग। लॉन्ग एक्सपोजर में आप ले रहे हो, एचडीआर कर रहे हो, पैनिंग कर रहे हो। सो बेसिकली कौन कौन से टेक्निक आप लेते हो, ड्रॉपलेट्स के ऊपर कर रहे हो, वाटर ड्रॉपलेट्स के ऊपर हो रहा है, या कोई स्टिल फोटोग्राफी करे, तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स विच यू आर अडॉप्टिंग टू टेक पिक्चर्स। ये अगेन एक कंपोजिशन के साथ, अगर आपकी पिक्चर में स्टोरी टेलिंग हो जाए, एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स हो जाए, इंटरेक्शन हो जाए, और एक विजुअली कुछ आपका वो डिपिक्ट कर रही है पिक्चर, तो वो स्टोरी टेलिंग पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। प्रेजेंटेशन, वेन एवर यू हैव टेकन अ पिक्चर, हाउ यू पोर्ट्रे और प्रेजेंट अ पिक्चर, फ्रेम के अंदर है या किसी के ऊपर प्रिंटेड है, किस तरीके से प्रिंटेड है, ग्लास के ऊपर है या टाइल्स के ऊपर है। सो एक प्रेजेंटेशन बड़ा रोल प्ले कर लेती है, कैनवस के ऊपर है,
और उसकी स्ट्रेचिंग हो रखी है या माउंटिंग हो रखी है. सो दीज आर द डिफरेंट एलिमेंट्स विच यू हैव टू कंसिडर. आप किस प्रोपोर्शन में उसको क्रॉप कर रहे हैं, माउंट कैसा कर रहे हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू प्रेजेंट योर पिक्चर. मिठाई के ऊपर जब चांदी का वर्क लग जाता है तो उसकी चमक और हो जाती है. सो दैट इज व्हाट आई मीन टू से है. सो जो ये 12 एलिमेंट्स का मैंने जिक्र किया था, इसके बाद इसका जो क्रक्स है वो ये है कि आपके पास एक विजन होना चाहिए, आपके पास टेक्निक होना चाहिए, कंपोजिशन स्ट्रांग होनी चाहिए और नरेटिव होनी चाहिए, स्टोरी टेलिंग हो या उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो. सो ये लास्ट टाइम डिस्कस किया था इन डिटेल्स, इसका जस्ट रिकैप था. आज जो हम करने जा रहे हैं वो रूल्स ऑफ कंपोजिशन है. ये रूल्स ऑफ कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसको मैं एक जोड़ता हूं. अगर आप एक म्यूजिक सीखने जाते हो तो उसके अंदर 7 सुर है, सारे गामा पाधा सा. तो इन सुरों के मिश्रण से ही कोई भी संगीत मेलोडियस बनता है और जो कानों को अच्छा लगता है. हम गुनगुनाते भी है या सुबह शाम उसको सुनते हैं. अगर म्यूजिक में मेलोडी है वो लाइफ लॉन्ग चलता है. पुराने गाने आज तक हम सुनते हैं क्योंकि उसके अंदर एक हमें उसकी उसकी मेलोडी हमें आकर्षित करती है. ठीक इसी तरीके से अगर गाने के अंदर सुर देखे जाते हैं, एक अच्छी फोटोग्राफ के अंदर ये जो रूल्स ऑफ कंपोजिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी पिक्चर में वो 12 एलिमेंट्स को आपने कंसिडर कर दिया और ये रूल्स ऑफ कंपोजिशन के ऊपर आपने एम्फेसिस ले कर दिया, आप बेसिकली कोई भी फोटो लेकर अपनी, अगर 12 एलिमेंट और ये रूल्स ऑफ कंपोजिशन उसके अंदर आ रहे हैं तो आपकी फोटो बहुत अच्छी है. और अगर नहीं आ रहे हैं तो उनमें वापस जाकर आप देखिए कि क्या उस पिक्चर में लैग कर रहा है. आप वो पिक्चर को डिस्कस कर सकते हैं, किसी को दिखा सकते हैं और उसकी बारीकियां, उसकी त्रुटियां, आपको जो फीडबैक एक अच्छा मेंटर या आपको फोटोग्राफर देगा उसे भी आपकी काम में एक निखार आ सकता है. सो रूल्स ऑफ कंपोजिशन में बेसिकली फोटोग्राफ कैसे क्रिएट करता है पिक्चर को, उस इंस्पायरिंग पिक्चर बनती है, उसके थॉट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, कंपोजिशन कैसी है, आज उसको हम देखने जा रहे हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो एक रूल है कंपोजिशन का वो रूल ऑफ थर्ड है. अगर आप ये सेंटर की पिक्चर देखेंगे तो आप अपनी किसी भी पिक्चर में ये 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस और 2 वर्टिकल लाइंस बना लें तो ये इसकी जो इंटरसेक्शन आता है, रूल ऑफ थर्ड ये कहता है जो जो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है. जैसे आप बीच की पिक्चर में बरसाना की होली वाला एक सब्जेक्ट देख रहे हो, उसकी आंख उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट के ऊपर आ रही है तो ये एक बड़ी स्ट्रांग और पावरफुल इमेज बन जाती है. अब रूल ऑफ थर्ड्स का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग हमने लेनी है, अगर वो इन पॉइंट्स पे हमारा सब्जेक्ट आ जाए तो वो बहुत अच्छी कंपोजिशन है. नेक्स्ट, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर कहीं भी अगर हमारे सब्जेक्ट की आंख आ रही है या उसकी पोजीशनिंग आ रही है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को छोड़ने के बाद हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की किसी भी पोजीशन में हमारा सब्जेक्ट आ जाए तो वो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन बन जाती है. तो सेंटर में आपने ये होली वाला आदमी देख लिया और लेफ्ट साइड में जो आप देखेंगे तो उसमें ये जो हॉर्स गैलोपर है ये हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रूल ऑफ थर्ड में फॉल करता है. इसी तरीके से ये जो अगला आप देख रहे हैं मॉरिशियस का शॉट, ये जो घोड़ों वाला है ये बाशांग चाइना का है और राइट वाला मॉरिशियस का है. सो हमें ये रूल ऑफ थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. आई विल से कि 80% 70% इमेजेस आपकी अगर रूल ऑफ थर्ड में आ रही है तो वो स्ट्रांगली एक इमेज पोर्ट्रे करेगी. सो इसको सबसे पहले रूल ऑफ थर्ड को फॉलो कीजिए. लास्ट सेशन में मैंने जो बिगिनर्स के लिए कहा था कि क्या क्या चीजें उनको फॉलो करनी है अपर्चर मोड में वो शूटिंग करे, तो एक मैंने कहा था मैक्सिमम पिक्चर रूल ऑफ थर्ड में ले. तो आप कोशिश करिए कि रूल ऑफ थर्ड में आपकी सारी इमेजेस आए. इस इमेज को देख लीजिए. सब्जेक्ट राइट साइड में है, बच्चे की आईज जो है वो जो रूल ऑफ थर्ड की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है उसमें फॉल करती है. ये लेफ्ट और राइट की बोर्ड्स को रूल ऑफ थर्ड के इसमें वर्टिकली हॉरिजॉन्टली आती है. ये सब्जेक्ट देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है. आ, उसकी पोजीशनिंग. सो सेंटर से शिफ्ट हो आपका सब्जेक्ट. बेसिकली कहा जाता है कि जितना भी सब्जेक्ट सेंटर में होगा वो पिक्चर वीक होती है. पर हमें सबसे पहले सारे रूल अंडरस्टैंड कर लेने हैं और सारे रूल बनाने के बाद अगर पिक्चर सब्जेक्ट हमारा सेंटर में भी आ जाए पर किस फ्रेम में आए तो वो इमेज भी स्ट्रांग बन जाती है. सो ये अभी हम रूल ऑफ थर्ड की ही बात कर रहे हैं. ये
चाइना का ओल्ड टी हाउस चेंगडू एरिया है, वहां की इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस है। प्रीवियस इमेज अगर आपने देखी थी तो वो भी रूल ऑफ थर्ड में थी। यहाँ भी सब्जेक्ट लेफ्ट में है। आ कहते हैं जब बारिश होती है तो कैमरास बंद हो जाते हैं, यहाँ बारिश के इसमें कैमरा लिया है। ये डियर्स का अगर आप देख रहे हैं तो जो राइट का डियर है, जब वो अपने आपको शेक कर रहा था, वाटर ड्रॉपलेट्स को हटाना चाहता था अपनी बॉडी से, तो एक जो स्प्रे पैटर्न आया। बट नेचर के अंदर भी वही रूल ऑफ थर्ड में अगर आपका सब्जेक्ट रह रहा है तो इमेज स्ट्रांग बन जाती है। ये लोअर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में ये सब्जेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंपोजिशन बन जाती है वो सेंटर, सिमेट्री सेंटर्ड। अभी मैंने कहा था कि रूल ऑफ थर्ड में होना चाहिए, पर अगर कोई सब्जेक्ट आपका सेंटर में है, लेफ्ट राइट और कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, तो आपका सब्जेक्ट सेंटर में भी बहुत पावरफुल बन जाता है। जैसे ये फाइन आर्ट का ये इमेज है, एक लेडी का ट्राइंगल इसका टाइटल है। तो अगर आप ये देखेंगे ऑलमोस्ट सेंटर पोजिशन है, रूल ऑफ थर्ड भी इसके अंदर लागू हो रहा है, पर ये पिक्चर बहुत स्ट्रांग बनकर आ रही है। सेम सिमेट्री बन रही है और एक सेंटर्ड फोकस है इस इमेज में। अगर आप देखोगे तो पूरा फोकस आपका सेंटर की तरफ आकर्षित होता है फाइन आर्ट में। नेचर में। सो मेरा ये कहना है, आपका कोई भी जॉनर हो, इसमें जो मैंने आपको पिक्चर अलग अलग कवर की थी, तो वो फाइन आर्ट से लेकर नेचर तक डिफरेंट जॉनर्स की मैंने इमेजेस दिखाई है। पर हर जगह में अगर आपका सब्जेक्ट सेंटर में है तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ जाता है, प्रोवाइडेड पैटर्न्स सिमेट्रिकल हो। ये लीव्स के अंदर अगर एक बर्ड है उसके ऊपर लाइट पड़ रही है, तो आप पॉन्ड हेरोन है, तो उसका अलग इम्पैक्ट आता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारा बन जाता है, वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में अगर हमारे सब्जेक्ट्स है, आगे अगर सब्जेक्ट है और बैकग्राउंड की डेप्थ बन रही है, और डेप्थ में अगर हमारा कोई सब्जेक्ट है और डेप्थ तक हमारा एक आईसाइट ट्रेवल कर रही है, तो वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इमेज बन जाती है। तो फोरग्राउंड में अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपकी पहली नजर फोरग्राउंड में जा रही है। लेफ्ट में देखिए, ये एक फ्लूट, स्विट्जरलैंड के अंदर जो ये एक आर्टिस्ट है वो इस तरीके से फ्लूट प्ले करता है। तो वो फ्लावर्स के बीच अगर आप देखेंगे फोरग्राउंड में है, और बैकग्राउंड में माउंटेन रेंज है, उससे पहले ग्रीन वैली है। सो एक पूरे गार्डन बेड के इससे माउंटेन्स की डिफरेंट रेंजेस तक आपकी नजर ट्रेवल कर रही है। और जो दूसरा देख रहे हो आप, वो आर्चेस है। जिन आर्चेस के बीच अगर एंड में देखोगे तो एक सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, वॉक कर रहे हैं इस पाथवे से। सो Hmm. अगर हमारी आंखें फोरग्राउंड से बैकग्राउंड तक या बैकग्राउंड से फोरग्राउंड तक सब्जेक्ट को लेकर आ जाए, तो वो हमारा सब्जेक्ट बड़ा स्ट्रांग बन जाता है, इमेज बड़ी स्ट्रांग बन जाती है। रोमानिया का एक मॉल के अंदर का वॉक थ्रू है। सो इसके अंदर पैटर्न बन रहा है, फोरग्राउंड तो नहीं, पर बैकग्राउंड में आपको लोग दिख रहे हैं, एक ईगल का आपको इमेज दिखता है। ये फोरग्राउंड में रेड कलर में एक लेडी वॉक कर रही है। ये अगेन हंगरी का शॉट है ये। एक चैपल के अंदर, ये 14th सेंचुरी की जो आप बेल देख रहे हैं, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी है, फोरग्राउंड में वो है। और बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं तो ये फ्रेस्कोस है, जो पेंटिंग्स हो रही थी जिसकी अब ये डिट्योरेट हो चुकी है, पर वो इसी तरीके से प्रिजर्व रखा हुआ है। तो डिट्योरेशन को भी प्रिजर्व रख के हमारा जो अट्रैक्शन जा रही है फोरग्राउंड में जा रही है इस इमेज में। सो ऐसी इमेजेस जिसमें फोरग्राउंड या बैकग्राउंड पावरफुल हो, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। ये थ्री मस्किटियर्स नाम है, पाशांग के अंदर -26 डिग्रीज टेम्परेचर में शॉट लिया है। फोरग्राउंड में ये घोड़े को लेकर अपने डॉग के साथ ये शेरपा टाइप बंदा जा रहा है यूटा की लेक के ऊपर। एक फोटोग्राफर रेड कोट में, एक फोटोग्राफर एक डायरेक्शन ले रही थी और इसको फोरग्राउंड में रखते हुए ये इमेज लिया है। ये जो शॉट आप देख रहे हैं, ये बाली के इंडोनेशिया में ये एक क्रेटर है जो वॉल्केनो से सारा खराब हो गया था, और उसके बाद ये दोबारा ये रिक्रिएट हुआ। सो उसकी ब्यूटी आप उसमें देख रहे हैं। ये अगेन यूटा का शॉट है। नेक्स्ट पॉइंट जो कंपोजिशन का आ जाता है, वो आ जाता है फ्रेम विद इन फ्रेम। कि आपकी एक इमेज आप ले रहे हैं, उसका एक फ्रेम बनाया,
और उस फ्रेम के अंदर एक और फ्रेम दिख रहा है, तो मतलब आउटलाइंस में एक फ्रेम बन रहा है, उसके अंदर आपका सब्जेक्ट आ रहा है, तो डबल फ्रेम का इल्यूजन आ रहा है। सो उसको हम फ्रेम विद इन फ्रेम कहते हैं। ये विंडोज के अंदर से लिया जा सकता है, ये जो आर्चेस होती है उसके अंदर हो गया, आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स के अंदर डाले जा सकते हैं। तो बेसिकली ये एक बड़ी कंपोजिशन, बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपोजिशन बन जाती है। ये ताजमहल के आगे कोई मॉडल थी, जो उसका कोई फ्रेंड उसकी फोटोज ले रहा था, तो एक कैंडिडेट शॉट में ये फ्रेमिंग फ्रेम का एक एलिमेंट बन गया। जो मैंने विंडोज का कहा था, ये हंगरी के स्कूल की गर्ल्स है, जो विंडो के फ्रेम्स के अंदर लिया गया है। केव के अंदर एक न्यूड आर्ट फोटोग्राफी का शॉट है ये, रोमानिया का। दास्तान शहादत के पास एक गुरुद्वारा है, उसके स्ट्रक्चर्स के अंदर से ये दिख रहा है, रिफ्लेक्शन में भी आपको गुरुद्वारा दिख रहा है। ये काफी डिपार्टमेंट में, काफी ये टूरिज्म डिपार्टमेंट में काफी इस इमेज को यूज किया गया है। गुरुद्वारा बेबे नानके है, और आप इस ऊपर के लेवल से फ्रेम में नीचे के लेवल के आर्चेस आपको दिख रहे हैं। सो फ्रेम विद इन फ्रेम, यू कैन मेक योर सब्जेक्ट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। सबसे इंपॉर्टेंट और एक अच्छी चीज और आपकी कंपोजिशन में आ जाती है, वो लीडिंग लाइंस एंड एस कर्व। आप जो ये ट्रैक देख रहे हैं, ये ग्रीनविच मीन टाइम का है। जो ये सेंटर की लाइन है, ये ग्रीनविच मीन टाइम के पास है, जो एक स्ट्रक्चर है, ये सेंटर लाइन वहां पर जाकर उस सेंटर लाइन में ग्रीनविच मीन टाइम को मिलती है। तो ये अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक बेसिकली आपको एक लीड कर रहा है। और राइट की इमेज में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये भी रोमानिया का है शॉट। पर ये जो रोड का ट्रैक आप देख रहे हैं, तो इसमें एक आगे जाकर ये रोड मुड़ जा रहा है, तो व्यूअर को एक फीलिंग आती है कि वो इस इमेज में ट्रेवल कर रहा है। तो अगर ये इमेज का फील आ जाए कि ट्रेवल कर रहा है, तो वो 2D से इमेज आपकी इमीडिएटली 3D की तरफ कन्वर्ट हो जाती है। सो ह्यूमन मेड रोड्स हो जाए या नेचुरल रोड्स हो जाए, ट्रैक्स हो जाए, वो लीडिंग लाइंस और एस कर्व में आते हैं। जैसे ये ट्रैक मैंने बता दिया, ये यूटा के अंदर लेक और माउंटेन्स के इसमें ये ट्रैक बनाया हुआ, वॉकेबल, लोग चल रहे हैं फार एंड में आप देखें। सो बेसिकली ये लीडिंग लाइंस का, और आगे जाकर देखेंगे तो एस कर्व बन रहा है। वही दूसरे एंड पे एक और ट्रैक है जिसमें ये बेंच दिख रहे हैं दूसरे एंगल से। ये एक मॉडल शूट हो रहा था जिसका कैंडिड शॉट लिया है। अगर आप फ्लोर पे देखेंगे तो आपको एक लीडिंग लाइंस डेप्थ दिखा रही है इस इमेज की। गुरुद्वारा के प्रोजेक्ट्स में जो मैंने लीडिंग लाइन अपना गुरु नानक जी का प्रोजेक्ट किया था चरण छोड़ सुल्तानपुर लोधी में, तो उन गुरुद्वारों के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, पहला आपको मैंने फ्रेम इन फ्रेम बताया। तो 70 पिंडों के 80 गुरुद्वारा करने में कई स्ट्रॉन्ग इमेजेस बनी हैं। जैसे इस उसी के अंदर जो आज सब्जेक्ट है लीडिंग लाइंस का, कंपोजिशन का रूल, ये उसको दर्शा रहा है। फिश आई एंगल से ये शॉट लिया गया है। बट अगर आप देखें कि दरबार साहिब से लेकर एंट्रेंस तक ये जो रेलिंग्स है लगी हुई, उनकी लाइंस लीडिंग लाइंस का रोल प्ले कर रही है। और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर की बैल्कनी है, सीलिंग है, तो आप एक डेप्थ देखोगे इसके अंदर। चाहे कारपेट है तो कारपेट के अंदर भी आप देख रहे हैं लाइंस का एक पैटर्न लीड कर रहा है आपको। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और पिक्चर को बहुत अच्छी डेप्थ देता है। बेबे नानके का ये इंडोर शॉट है, गुरुद्वारा बेबे नानके। दास्ताने शहादत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है वो पैटर्न एंड टेक्सचर्स है। ये शॉट हमने जब तपस की जो फर्स्ट सैलॉन, इंटरनेशनल सैलॉन हुआ था, उन जूरी मेंबर के साथ हम रॉक गार्डन गए थे, और विद इन 5 सेकेंड्स ये पोजीशन चेंज हो गई थी। और अगर आप देखेंगे तो बीच में ब्लैक शूज का पेयर दिख रहा है, और उसके दोनों तरफ ऑपोजिट एडजॉइनिंग जो है वो ऑरेंज है, और फिर दूसरा कलर आ रहा है, और सब क्रॉस लेग है। इसमें पीछे बैकग्राउंड का टेक्सचर एक अलग है। और पैटर्न की बात अगर करें तो ये शूज का जो पैटर्न है वो डायगोनल पैटर्न है। दोनों शूज की लाइन अगर आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें तो एक डायगोनल पैटर्न ड्रॉ हो रहा है इस इमेज में। तो बेस में टेक्सचर है, और जो सब्जेक्ट है उसमें आपका एक डायगोनल पैटर्न आ रहा है।
वही जो मैं पैटर्न की बात कर रहा था, ये आर्चेज है। चर्चेस के अंदर आपके आर्चेस बहुत अच्छे निकल आ सकते हैं। ये जो ईंट के भट्टियों के ऊपर अगर आप चले जाए, ये भी तपस की वर्कशॉप भी हमने की थी। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो ईंटों का एक अलग पैटर्न निकल कर आ रहा है। अब एक होता है अगला पॉइंट, वो होता है रेपिटेशन एंड इंटरप्शन। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज को क्रिएट कर सकता है। अगर आपकी इमेज की एक रिदम बन रही है और उसमें एक एलिमेंट ऐसा आता है कि जहां नजर टिक जाती है, तो इस इमेज में आप देखोगे ये राजस्थान का रणथंभौर का है। एक फोर्ट का है। हम वाइल्ड लाइफ सफारी करने गए थे, तो जब फोर्ट में हम ऐसे ही ट्रेवल कर मूव कर लिए कि फोर्ट का भी हम एक दौरा करते हैं। तो ये लोकल राजस्थानी लेडीज सब चल रही है, फ्रंट पे चल रही है। तो एक लेडी ने मुड़कर देखा तो उसने बेसिकली एक रेपिटेशन को तोड़ा है इस इमेज में। और इस इमेज को भी अगर बात करूं मैं, तो रिसेंटली इस इमेज को गोल्ड कलर सेक्शन में गोल्ड मेडल मिला है। ये शॉट नेट से लिया हुआ है। ये सिर्फ आपको बताने के लिए लिया गया है कि जो मेरा टॉपिक था कि ये रेपिटेशन के अंदर इंटरप्शन कैसी आनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर के सारे ऑरेंजेस में एक रेड कलर का ऑरेंज पूरी रेपिटेशन को भी तोड़ रहा है और एक अट्रैक्शन भी बन रहा है। सो मोनोटनी को अगर आप तोड़ सके, वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। सो रेपिटेशन एंड interruption, if that can be created as a rule of composition, your image will be very strong. Rule of odds, और ये भी एक आंखों को बहुत अच्छा लगता है। कोई भी चीज 3 हो, 5 हो, 7 हो, अगर वो चीज रहे तो वो एक फोटो को अलग डायमेंशन दे देता है। रूल ऑफ ऑड्स, अगर यहाँ 2 शेयर होते, पेयर होते, 4 होते, तो एक इवन नंबर हो जाता, तो वो सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं बनता जितना सब्जेक्ट ऑड्स में रहता है। सो एक ये रूल है कि अगर आपके पास 3, 5, 7 नंबर्स सब्जेक्ट के तौर पे आ सकते हैं तो इमेज स्ट्रांग बन जाती है। इसकी मेरे पास बहुत पूरी सीरीज है, ये 4 टाइगर्स की फैमिली का पूरे शॉट्स मेरे पास अलग अलग एंगल्स के हैं। बट यहाँ पर ये रूल ऑफ ऑड्स को लेते हुए ये 3 टाइगर्स हैं, दे आर लुकिंग एट यू एंड दे आर ड्रिंकिंग वाटर। रूल ऑफ ऑड्स में अगर आप ये देख लीजिए, यहाँ पर 2 ट्रीज है। जरूरी नहीं है कि 3 चीजें एक ही जैसी हो तो वो रूल ऑफ ऑड्स बन गया। अगर आप इस इमेज में देखेंगे 2 ट्रीज है और टाइगर है, बट देयर आर 3 सब्जेक्ट्स एंड यू विल सी दैट द मेन अट्रैक्शन गोज टू द टाइगर। The 2 other subject, the trees, they form the part of the rule of odds. Everything else is blurred, and this picture follows into that composition. अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे, रूल ऑफ ऑड में 5 कैमल्स हैं और 2 सब्जेक्ट अगर ये ह्यूमन बीइंग ले लें, कपल को ले लें, तो ये 7 हो गए। तो इसी इमेज में फोकस मेरा 3 चेरीज के ऊपर है। हेलो, 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 हाँ जी विनोद जी, ठीक है। आ रही है आवाज? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हाँ, तो फोकस मेरा चेरी के ऊपर है। चेरी 3 है, बट जो उसको कॉम्प्लीमेंट कर रही है ग्लासवेयर, वो 7 है। सो ऐसे अगर आपका रूल ऑफ ऑड्स बन जाए तो इमेज आपकी काफी स्ट्रांग बन जाती है। नेगेटिव स्पेस, अब कई बार कहते हैं, लोग कहते हैं कि टाइट क्रॉपिंग कर लेते हैं। ये मॉरिशस के अंदर एक ये लेडी थी जो अपने फैमिली के साथ वहां पर हॉलीडेज इंजॉय करने आई थी, बच्चा था उसका। सो शी वाज लुकिंग एट हर चाइल्ड एंड बट वॉकिंग टू द बीच। अगर ये देखें तो ये रूल ऑफ थर्ड में भी ये इमेज आ गई है। हॉराइजन इसका रूल ऑफ थर्ड में है। इस इमेज की जो पावर है, पावरफुल कंपोजिशन है, वो मैं यहीं आपको बता देता हूँ। इसका फोरग्राउंड भी रूल ऑफ थर्ड में है, इसका होराइजन भी रूल ऑफ थर्ड में है, और ये लेडी भी रूल ऑफ थर्ड में है। बट जब हम नेगेटिव स्पेस की बात कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में ये लेडी देख रही है वहां स्पेस बहुत खाली है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट के साथ बहुत
ओपननेस हमें मिलती है, जो क्लटर्ड ना हो, वो बहुत ही एक अच्छी डायमेंशन इमेज को दे देती है, नीटनेस दे देती है और एक खूबसूरती दे देती है। सो जितना नेगेटिव स्पेस एक अच्छे सब्जेक्ट के साथ आपकी इमेज में आ जाए, वो सोने पे सुहागा है। ये चढ़गांव रोडू एक जगह है हमारे, द प्लेस आई बिलोंग टू, द हिल स्टेशन। ये टेम्पल है, रूल ऑफ थर्ड में है, हॉरिजॉन्टल कंपोजिशन में भी, वर्टिकल कंपोजिशन में, बट मेजॉरिटी स्पेस स्काई का इसमें एक ओपन स्पेस मिल रहा है। ये स्टार सन बर्स्ट है। और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है वो है सिंप्लिसिटी एंड मिनिमलिज्म। ये कहता है कि आपकी पिक्चर के अंदर जितना मिनिमम आप दिखा सकते हो और मैक्सिमम एरिया आपका फ्री रहे, तो वो एक सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म के अंदर शॉट आता है। वो पिक्चर अलग ही पावरफुल बन जाती है और बड़ी सूदिंग बन जाती है। उसको एक सिंपल सा एक इमेज बना लो आप, एक कबूतर किसी बैकड्रॉप के वॉल के साथ है और वॉल बड़ी प्लेन है। वो एक नेट का शॉट आगे मैं दिखाना चाहूंगा अगर इसमें आएगा। और या एक स्नो एरिया है और उसमें स्नो आपकी पूरी पड़ी हुई है, चारों तरफ स्नो है, और वहां अगर आप एक ट्री देखते हैं और ट्री ही आपका सब्जेक्ट है, पूरा फोरग्राउंड बैकग्राउंड आपका पूरा क्लीन नीट क्लीन स्नो से कवर्ड है, और एक ही पेड़ के ऊपर आपकी अगर नजर जा रही है, तो वो सिंप्लिसिटी और मिनिमलिज्म में आएगा। उस शॉट की पावर और स्ट्रेंथ आंखों के लिए बढ़ जाती है, एक अट्रैक्शन बन जाती है। वो एक क्रिएटिविटी कह सकता हूँ मैं, इसके अंदर एक अलग क्रिएटिविटी निकल कर आती है। आपकी आईज को आप कैसे उस शॉट को कैसे इमेजिन कर रही है, कैसे फोर्सी कर रही है, और कैसे उसको प्रोजेक्ट करने वाली है कैमरा के थ्रू। हाँ, अगर आप देखेंगे तो यहाँ बर्ड के से आप देखो कि सिर्फ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, बाकी सारा स्पेस खाली है हमारा, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। ये जो नेट का शॉट है, इसमें मैं वो बताना चाहता हूँ कि एक कबूतर स्टेयर्स के ऊपर है पर पूरी वॉल क्लीन एंड क्लियर है। सो इस मिनिमलिज्म की बात कर रहा हूं। अगर आपका शॉट इस तरीके से है, नेगेटिव से है, सब्जेक्ट बहुत कम है, छोटा है, पिक्चर का पावर उतना ही बड़ा बन जाता है। भाषा में ये गैलपर है, पूरी डस्ट, इसके आगे हंड्रेड्स ऑफ हॉर्सेस दौड़ चुके हैं। इस डस्ट के अंदर कुछ कुछ आपको हॉर्सेस की हल्की सी इमेज दिख रही है, पर पूरी डस्ट में ये गैलपर देख रहा है। तो ये मिनिमलिज्म भी है और क्लटर नहीं है ये में। आ, एक मैंने जो लास्ट टाइम सेशन में कहा था कि आपके जो एलिमेंट्स के बाद मैंने एडवाइस दी थी, वो एडवाइस मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपकी फोटो में विलेन का कोई काम नहीं है। जैसा मूवी में विलेन का कोई काम नहीं है, ही कम्स टू अ डेड एंड, या जेल चला जाता है या मारा जाता है, उसी तरीके से आपकी किसी भी पिक्चर में जो बैकग्राउंड की जो डिस्ट्रैक्शंस है, फोरग्राउंड में कोई डस्टबिन है, बैकग्राउंड में कोई बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है, उन उन क्लटर्ड बैकग्राउंड को और फोरग्राउंड को अगर आप अवॉइड कर दें, बिकॉज वही पिक्चर के विलेन है। सो उन विलेंस को हटाकर जितनी क्लटरिंग आप हटा देंगे, और बैकग्राउंड अगर आपका सूदिंग है, तो सब्जेक्ट के ही ऊपर फोकस रहेगा, पीछे नजर कहीं नहीं जाएगी। सो ये बेसिकली एक ब्राह्मणी काइट है जो स्नेक को लेके उड़ रही है। सो आप देखिए पूरा बैकग्राउंड कोई क्लटर नहीं है। यहाँ पर ग्रे हाउंड स्नेक को लेकर उड़ रहा है, बैकग्राउंड कोई क्लटर नहीं है। पर्पल हेरोन फ्रॉक को लेके जा रहा है, कोई क्लटरनेस नहीं है। ये बी ईटर है, बैकग्राउंड इज नीट एंड क्लीन। हेयर ऑल्सो द बैकग्राउंड इज नीट एंड क्लीन। यहां तक ये सब पॉइंट करने के बाद, अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किसी भी फोटोग्राफी का आता है, एंड दिस इज माय फेवरेट एडवाइस टू ऑल, चेंज योर पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी इमेज में आप 2 फुट लेफ्ट, 2 फुट राइट चले जाएं, एक माला ऊपर चले जाएं, या जमीन पे लेट जाएं, आपकी इमेज की डायमेंशन ही बिल्कुल अलग आ जाएगी। सो कीप इन माइंड, आइदर गो हाई और गो डाउन, मूव टू द लेफ्ट और गो टू द राइट। अगर आपने ये चीज फॉलो कर दी, तो आपकी इमेज के अंदर विलेंस भी नहीं होंगे, डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होगी, और क्लटरिंग भी नहीं होगी। हो सकता है आप इमेज ले रहे हैं और एक पेड़ जो है या एक पोल है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है,
और वो हर पिक्चर में आ रहा है, तो आप 2 फुट राइट और लेफ्ट चले जाएंगे तो वो ट्री और पेड़ को आप इसको पोल को आप अवॉइड कर लेंगे। और जैसा लेफ्ट में अगर आप शॉट देखेंगे, राइट वाला जो लेफ्ट वाला एक शॉट है जो मैंने लास्ट उसमें दिखाया था, शायद आगे भी आएगा, वो लंगर सेवा के उस पर उसको गोल्ड मेडल मिल चुके हैं। उसी इस इमेज में ये एरियल शॉट ड्रोन से लिया है। और ये एरियल शॉट में भी अगर आप देखेंगे वही लेडीज लंगर का सेवा कर रही है, चपातियां बना रही है, बट हियर द पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के अंदर ये मैं लेटा हुआ हूँ, और ये एक वहाँ की जो चाइना की जो सेक्रेटरी है आईयूपी की, वो जंप कर रही है, पर मेरे को भी किसी ने पीछे से फोटोग्राफ कर लिया। सो ये वो पावर इस की आती है कि उसका पर्सपेक्टिव एक अलग था, मेरा पर्सपेक्टिव अलग था। राइट का शॉट्स देख रहे हैं आप अगर, तो यहाँ पर पोजीशन गैलपर के जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके ये फ्रेम में राइट साइड के रूल ऑफ थर्ड में आया, तो इसकी स्ट्रेंथ उस शॉट पे बन गई। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, आइदर मूव लेफ्ट और मूव राइट इफ योर शॉट इज नॉट कमिंग गुड, आइदर मूव 2 steps लेफ्ट 2 steps राइट, इट कैन बी 10 steps ऑल्सो, बट मूव फ्रॉम द कन्वीनियंट और कॉम्प्लेसेंट प्लेस। अपने कन्वीनियंट स्पेस को छोड़कर थोड़ी डायरेक्शन चेंज करें, लेनन खराब करने के लिए लेट जाएं या पहले दूसरे माले पे चले जाएं। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की कंपोजिशन में ये शॉट, इसको अवार्ड्स मिलते हैं। ये सिर्फ एक कैंडिड शॉट एक तरीके से इस तरीके से लिया, चलती गाड़ी से हमने ये शॉट ले लिया था, ये रोडू का है। लेफ्ट में एक ये रोड कटिंग के दौरान जो पत्थर बना है वो एक अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक ह्यूमन और एक, या आप कह दो एक एलियन टाइप फेस की उसकी एक फील आता है। और स्काई का अच्छा बैकग्राउंड है, तो अगर हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर लें, एंगल चेंज कर लें, तो काफी हमें चीजें मिल जाती है। ये वही शॉट है जो एरियल शॉट मैंने आगे पहले आपने छोटे में देखा था। रूल ऑफ स्पेस, अगर आपकी इमेज में कोई भी आदमी चलते हुए पूरी इमेज की डेप्थ को दिखा सकता है और एक लीड कर सकता है कि योर आई स्टार्ट ट्रेवलिंग, कि ये इस मॉडल के साथ हम अगर चल रहे हैं तो इस पूरी इमेज की डेप्थ क्या है, तो एक ब्रीदिंग स्पेस भी हो, सेंस ऑफ मोशन भी हो, और एक नरेटिव फ्रेम भी बन जाए। इस इमेज के अंदर ब्रीदिंग स्पेस भी है और एक फील भी है कि ये अगर चल रही है तो ये पूरे इस ट्रैक पे जो ये वॉल है इस पे चल सकती है, ये नरेटिव बन सकता है कि ये पूरी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का वॉकिंग एरिया बनता है। सो अगर इस तरीके की आपकी इमेज बनती है, रूल ऑफ स्पेस बता सकती है, नरेटिव हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी कंपोजिशन बन जाती है। ये ये मैंने देखा था कि ये एक फिशरमैन हॉबी के लिए ये फिशेस को पकड़ रहा था यूटा में, और जैसे ही इसके हुक में फिश आती थी उसको ये हुक से निकाल के फिर वापस छोड़ देता था। सो इट इज नॉट दैट ही इज हंटिंग फॉर फिश, इट इज जस्ट फॉर फन, ही इज टेकिंग फिशेस। और इसमें वही जो मैं रूल ऑफ स्पेस की डेप्थ की बात बता रहा हूँ, नरेटिव बन रहा है। आई कैन सी हाउ लॉन्ग माई आईज कैन ट्रेवल, ए डिफरेंट एंगल ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। अगर ये आप देखें तो ये रोड के इसमें वॉक करती हुई लेडी ये डिपिक्ट करती है कि मेरे पास स्पेस कितना है। रूल ऑफ बैलेंसिंग, ये रोमानिया के माउंटेन्स में हमने एक न्यूड शूट किया था। तो अगर आप ये देखेंगे कि सब्जेक्ट की प्लेसमेंट के साथ, और ये नेचुरल है कि जो एक ये ग्लाइडर वहां पर पैराग्लाइडर वहां उस एरिया में घूम रहा था, तो इस अगर इमेज में देखेंगे तो पैराग्लाइडर इस मॉडल की तरफ और ये मॉडल की आइज उस पैराग्लाइडर की तरफ है, तो ये दोनों चीजें एक दूसरे को बैलेंस कर रही है। कॉर्नर में पैराग्लाइडर को बैलेंस करने के लिए मॉडल है, मॉडल को बैलेंस करने के लिए पैराग्लाइडर है। सो दिस इज नोन एज द बैलेंसिंग। अगर आपका सब्जेक्ट थोड़ा ऑफ सेंटर हो, उसको बैलेंस करने के लिए मिडल में या दूसरे एंड पे अगर कोई सब्जेक्ट और आप डबल क्रिएट कर सकते हैं तो वो बैलेंसिंग बन जाता है, और वो एक तरीके से जो स्पेस है उसको फिल कर लेता है। अगर पैराग्लाइडर ही होता, मॉडल नहीं होती, तो ये सारा स्पेस खाली था, उसको फिल करने के लिए मॉडल आ गई। अगेन बैलेंसिंग, इस मॉडल को स्ट्रीट के अंदर अभी एक गोल्ड मेडल मिला है। इसने एक नेचुरल जंप किया और ये क्लिक किया ह्यूमन को एक एनिमल
बैलेंस कर रहा है, एनिमल को ह्यूमन बैलेंस कर रहा है, ट्री है, ट्री को बोट और बोट को ट्री। सो अगर एक दूसरे को आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो वो रूल ऑफ बैलेंस बन जाता है। ये मॉरिशस का है, ये यूटा का है, एक गजीबो है, सेंटर में एक हटमेट है। तो एक दूसरे को ये कॉम्प्लीमेंट करते हुए स्पेस बीच का खाली ना रहे। ये वाला शॉट रूल ऑफ बैलेंस में भी आ जाता है। और ये शॉट इस वक्त जो है वो होराइजन के लिए दिखाया जा रहा है। आप होराइजन के लिए एक चीज ध्यान में रखें, आपका होराइजन रूल ऑफ थर्ड्स में हो, या 1/3 बॉटम से हो, या 2/3 स्काई से हो। कभी भी आपका होराइजन सेंटर में नहीं रहना चाहिए। सेंटर का होराइजन इज वन ऑफ द मोस्ट वीकेस्ट इमेज। और सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होराइजन में, आपका होराइजन कभी भी इंक्लाइंड नहीं होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। आप इस इमेज में देखेंगे होराइजन इज स्ट्रेट। जब भी आपकी किसी इमेज का होराइजन स्ट्रेट नहीं है, काइंडली सबसे पहला काम उस इमेज का, आप उसका होराइजन ही स्ट्रेट करें, उसकी क्रॉपिंग ऐसी करें, नीचे से फोरग्राउंड से बॉटम से वो 1/3 पे हो, या टॉप से वो, अगर बॉटम से कंसीडर करें तो 2/3 पे हो, ऊपर से 1/3, नीचे से 1/3। ये 1/3 पे है होराइजन, ये 2/3 पे है होराइजन। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आइदर योर होराइजन इज एट 1/3 or your horizon is at 2/3. Here also you can see horizon at 1/3 from top, 2/3 from bottom. नेक्स्ट कंपोजिशन जो आती है, और वो एक लास्ट कंपोजिशन मैं कहता हूं कि जो इंपॉर्टेंट है, वो डायगोनल्स और ट्राइंगल्स है। अगर आपकी किसी भी इमेज में एक डायगोनल लाइन है या एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है तो वो इमेज बड़ी स्ट्रांग बन जाती है। अगर ये रेलिंग का देखेंगे, पैरेलल लाइन चल रही है, डायगोनल लाइन चल रही है, वो इस इमेज को डेप्थ दे रही है। जैसा मैंने पहले कहा था, 2D से 3D इफेक्ट। ये बॉटम में जहां ये मॉडल खड़ी है, वो ब्लैक फ्लोर स्पेस, वो एक फीलिंग दे रहा है, उसकी लाइन दे रही है, वो भी डायगोनल जा रही है और एक लीडिंग लाइंस का पैटर्न बन रही है। और अगर आप देखेंगे, ये जो सिंगापुर का ये हार्बर है, तो जो लैंड बैकग्राउंड का जो लैंड है और जो फ्रंट का लैंड है, बीच में वाटर बॉडी का एक ट्राइंगल बन रहा है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दीज पिक्चर्स, जहां आपको डायगोनल्स भी पिक्चर में मिल जाए, ट्राइंगल्स आपको पिक्चर में मिल जाए, वो इमेज आपकी स्ट्रांग बनकर आएगी। इस इमेज में भी जो मैं बात कर रहा था, वही डायगोनल लाइन जा रही है। ये शॉट भी डायगोनल लाइंस में मैं क्यों ले रहा हूं, अगर माउंटेन रेंज आप देखेंगे, दैट इज डायगोनल, और एक ट्राइंगल भी बन रहा है उसका, फोरग्राउंड का दुपट्टा डायगोनली जा रहा है। और जो बैकग्राउंड मिड ग्राउंड है, जो बैक फोरग्राउंड में आपको माउंटेन रेंज दिख रही है, तो जो मिड ग्राउंड है उसका एक ट्राइंगल बन रहा है। सो बेसिकली इन दिस इमेज यू कैन सी 2 ट्राइंगल्स, एंड जो दुपट्टा है वो डायगोनल फ्लो कर रहा है। सो अगर आपकी इमेज में ये चीजें आ जाती है तो वो इमेज बड़ी पावरफुल बन जाती है। ये वाई आई हैव शोन हियर, अगर ट्राइंगल्स और डायगोनल्स की जो मैं बात कर रहा था, इस फाइन आर्ट में इस लेडी के आर्म्स का ट्राइंगल बन रहा है, नी तक उसकी लेग्स का ट्राइंगल बन रहा है। सो अगर इस तरीके के आपका फोर्सी कर सकते हो आप इमेज में, ज्योमेट्रिकल पैटर्न आ जाए तो वो बहुत स्ट्रांग बन जाती है। दास्तान शहादत का शॉर्ट का एक ऑलमोस्ट ट्राइंगल पैटर्न है, रिफ्लेक्शन में भी दिख रहा है। ये हरीके का है, ये एक दो अलग अलग रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है। तो उसका एक आपका देख रहे हैं तो एक लैंड बॉडी का ट्राइंगल बन रहा है। बेसिकली जो इतने मैंने कंपोजिशन आपको बताई थी, वो कंपोजिशंस सारी इस स्लाइड के साथ एंड हो गई है। सो ये 16 बेसिकली कंपोजिशंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपने फॉलो करनी है। इन कंपोजिशंस के बाद मैं आपको कुछ अपनी तरफ से एक एडवाइस देना चाहता हूं, जो ये पिछली स्लाइड में भी मैंने बोल दिया था। पहला ये है कि यू हैव टू रिमूव विलेंस, यूज योर इंडेक्स फिंगर्स फर्स्ट फॉर टेस्ट शॉट। कभी भी आप शॉट्स का बर्स्ट ना ले, एक शॉट लेने के बाद देख लीजिए वो रूल्स ऑफ कंपोजिशन में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
या उसके अंदर कोई कमी है तो उसे आप देख लीजिए। वाव इमेज होनी चाहिए, क्लीन और क्लटर नहीं होनी, क्लीन होनी चाहिए, क्लटर नहीं होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव डिफरेंट एंगल होना चाहिए। डर्टी लिनन, आप नीचे लेटे हैं या नहीं लेटे हैं। और आप एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप दिखाइए। रूल्स ऑफ कंपोजिशन जो मैंने बताए उनको फॉलो कीजिए। आप अलग होने चाहिए, आपका फोटोग्राफी का जॉनर कोई भी हो, पर आपकी कंपोजिशन और आपकी आई अगर डिफरेंट है तो यू कैन कैप्चर डिफरेंट इमेजेस। नो योर प्लेस एंड टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं ऐसे सोमवार को या फ्राइडे को कई म्यूजियम्स बंद होते हैं, आप सोमवार को ऐसी जगह पहुंच जाओ बंद है, या टाइम 5 बजे तक खुला, आप 6 बजे पहुंच जाओ, तो कीप दैट थिंग इन माइंड। गोल्डन आर द बेस्ट टाइम टू शूट। फिल द फ्रेम, टेक एन नंबर ऑफ पिक्चर, कम्युनिकेट विद पीपल। ये सैलॉन का थोड़ा था कि सैलॉन के लिए हमने जो करना है, अगर पार्टिसिपेट करना है, अगर नाम बनाना है, शोहरत बनानी है, मनी भी बनाना है, विच आई हैव प्लेड अ वेरी इंटेग्रल पार्ट इन माय सैलॉन जर्नी ऑफ फोटोग्राफी। सो सैलॉन क्या है कि फ्रेंच में उसको मीटिंग प्लेस बोलते हैं, जहाँ बातें चीतें होती है। सो वही एक पार्ट है कि जहाँ एक आपकी एग्जिबिट कर सके, चर्चा में लोग जजेस है और आपकी एवेल्युएशन कर रहे हैं। सो दैट इज सैलॉन फोटोग्राफी। नेशनल इंटरनेशनल सैलॉन्स होते हैं। सो बेसिकली ये सेक्शन हम अलग लेंगे बाद में। कौन कौन से सेक्शंस होते हैं, मोनोक्रोम, कलर, नेचर, वाइल्ड लाइफ, अलग अलग इसके अंदर थीम्स बनी होती है। फोटो ट्रेवल है, जर्नलिज्म, क्रिएटिव, थीम बेस्ड। टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ लीजिए, स्पेक्स पढ़ लीजिए, तो ये सारा कुछ दिया होता है रूल्स एंड रेगुलेशन में। 1920 by 1080 ये स्टैंडर्ड साइज बन चुका है। 300 DPI की, लेस देन 2 MB, चाहे नेशनल सैलून हो चाहे इंटरनेशनल सैलून हो। सो ये पार्ट मेरा खत्म हो जाता है। अब जो मैं थोड़ा आपसे अगले 5 मिनट शेयर करना चाहूंगा, वो मेरा स्टाइल फोटोग्राफी का क्या है। अब अगर बात नेचर की करें, आई गो थ्रू क्विकली थ्रू दिस स्लाइड्स, नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स है। पर्पल हेरोन है, स्नेक को लिया हुआ है, मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर आपके शॉट्स है, आपकी इंटेलिजेंस है कि इसका अगला मूव क्या होगा, अगर वो भी आप कैप्चर कर लें तो एक पिक्चर दूसरी से बेहतर बन जाती है। यू कैन सी है, here it is moving, here is lifted up the claw, giving different dimension. Here the ibis are fighting, purple heron, ticking frog. सिमिलर है डायरेक्शन दोनों टाइगर्स की, एक ऑपोजिट एंड्स की तरफ देख रहे हैं। ब्रदरली किस है। यहाँ आप देखें तो जिस वॉल के ऊपर खड़ा है उसका अलग पैटर्न है, वाटर बॉडी का अलग पैटर्न है, रिफ्लेक्शन अलग दिख रही है। ये सीरीज है जिसकी मैं बात कर रहा था, कंपोजिशन की। ये दोनों ब्रदर्स है एंड दे आर ईटिंग दिस डियर। ये स्पॉटेड डियर को किल करके, ये एरो हेड टाइगर है, ये रणथंभौर की, विच इज नो मोर देयर, शी हैज डाइड नाउ। बांदीपुर का है, वेरी रेयर साइट। बेबीज आर फीडिंग ऑन मदर। दैट इज, दिस पिक्चर हैज फेच्ड मेनी अवार्ड्स फॉर योर आइज ओनली। ऑल द 4 tigers लुकिंग एट यू, ऑल द 4 tongues लिकिंग वाटर। ये जो टाइगर की रूल ऑफ लॉर्ड्स में दिखाया था, ये डिफरेंट। ये नील गाय को उसने किल किया था, मेल टाइगर ने, और जंगल से वाटर बॉडी में, वाटर बॉडी से बाहर ड्रैग किया। सो इसकी पूरी सीरीज के शॉट्स है, जैसे ये दिखाना चाहता हूँ। टेल में अगर आप देखेंगे तो एक अलग पैटर्न बन रहा है, ये उसी का दूसरा एंगल है। ये भी एक शॉट है कि स्लॉथ बेयर का और टाइगर का फाइट था, इसकी पूरी सीरीज के शॉट्स हैं। ये अगर आप देखेंगे तो ये विस्कर्स टाइटल है, हेड के जो विस्कर्स है और स्नेक का जो है वो एक ही एंगल बना हुआ है। जिस स्टोरी की मैं बात कर रहा था, जो मैंने लास्ट टाइम शेयर नहीं की थी, वो स्टोरी मैं शेयर करना चाहता हूँ कि व्हाट इज द हैबिट ऑफ द बर्ड्स जो ये स्नेक्स के ऊपर फीड करते हैं। ये आईबीज है। ये आईबीज वाटर से या जमीन से स्नेक को निकालता है, और ये दूसरा आईबीज, अगर 2 आईबीज साथ हो तो दे फाइट ओवर द ओनरशिप ऑफ दिस स्नेक, कि कौन उसको ओन करेगा। तो देयर इज अ फाइट, द पावरफुल आईबीज कैचेस होल्ड ऑफ द स्नेक एंड इट फ्लाइज, द अदर फॉलोज इट। और वो जब तक वो फास्ट फ्लाई करके दूर निकल जाता है तो ये पीछे वाला उसको ट्रैक छोड़ देता है। वो लैंड करता है स्नेक के साथ, खाने की कोशिश करता है। दूर बैठा पॉन्ड हेरन, उसको, पॉन्ड हेरन का काम सिर्फ यही है कि आईबीएस को देखना उसने स्नेक कब निकाला है। तो इसने देख लिया, वो स्नेक उसके आस पास आ गया है, और इसके इतना चालाक होता है
जब दो आईबीस स्नेक पे फाइट कर रहे होते हैं, ये फ्लाई नहीं करेगा। ये तभी फ्लाई करेगा जब स्नेक एक आईबीस के पास है। सो इसने यहां से वॉच किया, ये उस आईबीएस के पास गया, उससे छीन लिया, ये टेक ऑफ कर दिया, और इसने ये लैंडिंग किया और इस पे फीड करना चाह रहा है। अब ये जो ब्राह्मणी काइट है, ये इसे भी स्नेक स्नैच करके उड़ के ले जाती है। सो दिस इज द स्टोरी कि आईबीएस से स्नेक लेते लेते ग्रे हेरॉन से बात ब्राह्मणी काइट उसकी फीड की ओनर बन जाती है। तो दिस इज माय स्टाइल कि मैं एक्शन फोटोग्राफी लाइक करता हूँ। सो ये हॉर्सेस सीरीज है। किला रायपुर का 13 साल बाद इवेंट हुआ था। सो देयर सम एक्शन, सो गो ऑन फॉर द एक्शन शॉट्स। कोई थीम पे आप कर लो, ये बरसाना की होली के ऊपर के शॉट्स है। सब्जेक्ट अलग से दिख रहा है इसमें। कलर कैटेगरी आती है जो सैलॉन की बताई है, उसमें वही शॉट जिसकी बात मैं कर रहा था। मोनोक्रोम सेक्शन आता है, डायरेक्शन लाइट, इमोशंस, फाइन आर्ट। अगेन दिस हैज बिकम माय वन ऑफ द फेवरेट जॉनर्स। दिस पिक्चर हैज गॉट मेनी अवार्ड्स। पीएसए गोल्ड मेडल भी मिल चुका है इस पिक्चर को, क्लब गोल्ड मेडल्स भी मिल चुके हैं। सो हर सैलॉन में ये आइदर एक्सेप्ट हो रही है या ऐसे मेडल्स आ रहे हैं। सो अगर आप अलग अलग पोस्टर्स प्रॉप्स के साथ, फाइन आर्ट बेसिकली कलर में भी हो सकती है आपकी और ब्लैक एंड व्हाइट में भी हो सकती है। बट जो पावर और स्ट्रेंथ मोनो में आती है, वो मेरी नज़र में थोड़ा कलर्स में थोड़ा सा कम रहती है। ऐसा नहीं है कि कलर में फाइन आर्ट कर नहीं सकते हैं। यहाँ कलर सिर्फ इसलिए दिखाया कि आई वांट टू मेक गिव यू अ कंपैरिजन कलर और उसमें मोनो में कितना फर्क रहता है, कलर का है। और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कलर एंड मोनो। सो लेफ्ट में सेम मॉडल इन मोनोक्रोम एंड राइट में कलर में। सो कई जगह कलर सेक्शन में इसका ये जो लोअर है वो पावरफुल बन जाता है, और कई जगह ब्लैक एंड व्हाइट काम अच्छा करती है। ट्रेवल कैटेगरी माय फेवरेट। दिस हैज फेच्ड मी मोर देन 100 इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड्स। इंटीरियर ऑफ कोलोसियम में, ये मूविंग बोट से लिया है सिंगापुर में। नायग्रा फॉल्स, these pictures both are being accepted and awarded. Great Wall of China, maximum accepted or awarded. This has got PSA gold medal. Even this has got PSA gold medal. जर्नलिज्म की जो स्टोरी टेलिंग जो होती है, पावरफुल अगर आप इमेज क्रिएट कर सकते हैं तो ये स्टोरी टेलिंग इमेजेस है। ये मोहाली में हुआ था। एक्सप्रेशन, हर रेसर का एक्सप्रेशन इसमें अलग है। किला रायपुर, होला मोहल्ला, मोशंस, लाइफ, एरियल शॉट्स ड्रोन से लिए गए हैं। यू कैन गो टू अ हायर बिल्डिंग ऑल्सो। ये एक ट्राइंगल है, रेड ट्राइंगल इसको बोलता हूँ। तीनों अगर आप कॉटेजेस हाउसेस देख रहे हैं, रेड कलर की रूफ के साथ अलग एंगल में है, एंड रोड इज क्रॉसिंग थ्रू ऑल द हाउसेस। ये गुरुद्वारा की सीरीज में दिस पिक्चर हैज गॉट गोल्ड मेडल ऑल्सो। कलर पोर्ट्रेट्स कुछ दिखा रहा हूँ। ये पिक्चर को पीएसए गोल्ड मेडल बहुत बार मिल चुका है, कई गोल्ड मेडल्स मिल चुके हैं। ये यूटा के शॉट्स है, ये वाले, ये वाला रोमानिया। दिस हैज गॉट मेडल्स। चेंगदू, ये तपस की वर्क फोटो वॉक हुआ था, इंडोर पोर्ट्रेचर वर्कशॉप हुआ था। ये काफी काफी के पास होगा। पोर्ट्रेट्स मोनोक्रोम। क्रिएटिव, हाउ मच यू कैन बी क्रिएटिव। वाटर ड्रॉपलेट्स, एक भी जो फॉर्मेशन है, एक भी जो इमेज आती है, वो दूसरी वाटर ड्रॉपलेट इमेज के साथ रिपीट नहीं हो सकती। सो इट इज ओनली वन पिक्चर ऑफ अ काइंड विच यू कैन गेट विद दिस ड्रॉपलेट। ये एक ड्रॉप के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, जब कोविड में कोई काम नहीं था, कुछ नहीं कर रहे थे, तो भाटिया जी के साथ ये सीखकर ये वाटर ड्रॉपलेट्स किया गया है। म्यूजिशियन है,
modern art. Or finally, the final advices which I want to give here, your image should be wow. Once again, I'm saying it should be clean, not cluttered. Different angle, dirty linen, no negative space. एंड एट टाइम्स रूल भी ब्रेक हो सकता है कि नेगेटिव स्पेस भी हो. सो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. शो अ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट. फॉलो रूल्स ऑफ कंपोजिशन. बी डिफरेंट. नो योर प्लेस एंड टाइमिंग्स. Golden hours the best. Fill the frame. Take n number of pictures. Communicate with people. If your picture is not good, you are not close to the subject. Prepare well in advance. इसमें एडवाइस है, आप जब भी फोटोग्राफी के लिए जाए, एक बैटरी, आपकी किट, भले ही किट बैग आप साथ ले जा रहे हैं, पर एक कार्ड और एक बैटरी अपनी पॉकेट में ही रखिए. आप कई बार महसूस करेंगे आपका कार्ड खत्म हो गया एंड देन यू रियलाइज कि आपका फोटोग्राफी बैग गाड़ी में है, और गाड़ी से बैग लाने में, या किसी आपकी वाइफ है या सन है उसका ध्यान रख रहा है, उससे बैग मंगाने में, यू विल लूज द एक्शन बाय द टाइम यू गेट द कार्ड और द बैटरी. सो इमीडिएटली आपके लेफ्ट पॉकेट पे, एक्सेसिबल पॉकेट पे एक कार्ड, और राइट पॉकेट या लेफ्ट पॉकेट में एक बैटरी हैंडी रहना चाहिए. सो ये वो एडवांस की बात कर रहा हूँ. और घर से निकलने से पहले आपकी बैटरीज चार्ज होनी चाहिए, कार्ड प्रॉपर होनी चाहिए. कैटरी एक्स्ट्रा बैटरीज कार्ड. रिविजिट अ प्लेस इफ नो गुड रिजल्ट. इसका मतलब ये कि अगर आपका रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो और उस जगह पे जाइए, पर कोशिश ऐसी करिए कि दोबारा जाना ना पड़े. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एक मेंटर होना चाहिए जिसको आप अपना काम दिखा सके और निखार सके. और मेंटर का बड़ा रोल है. और लोग आजकल चीट शीट्स पे सोच लेते हैं कि हम फोटोग्राफी सीख लेंगे, और चीट शीट शेयर कर देते हैं और कह लेते हैं कि जी इससे सीख लो. गूगल से, यूट्यूब से और चीट शीट से सीखना आसान होता तो शायद सब सीख लेते, पर जब तक गुरु और चेले का कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन और एक काइनेस्थेटिक कनेक्शन नहीं है, मेरी नज़र में फोटोग्राफी में एडवांस लर्निंग नहीं हो सकती. सो ऑलवेज कीप अ मेंटर हु कैन, अगर फिजिकली भी नहीं मिल रहा तो आप उसको फोटो भेज के, उससे गाइडेंस लेकर उसे पूछ सकते हैं, उसकी त्रुटियां पूछ सकते हैं. ये बात अभी आप नोट कर लीजिए, कीप अ मेंटर. इसका मैं सब्सिक्वेंटली एंड में थोड़ा और विस्तार से बोलूंगा. शोलेस, ये नहीं कि किसी को 100, 1000, 200 पिक्चरें दिखा दो, किसी के पास टाइम नहीं है. टेक 10-20 पिक्चर्स और जिसकी सिलेक्शन आप खुद कर लें और उतना ही दिखाएं. आप शेयर योर बेस्ट इमेजेस, अपने दोस्तों से दिखाइए, सोशल पेजेस में डालिए, यूट्यूब को देखें, फोटोग्राफी रिलेटेड वीडियोस देखें. गूगल, फेसबुक, इंस्टा, पिक्सटो, फ्लिकर, ये अलग अलग कई प्लेटफॉर्म्स हैं जहां आप इमेजेस डाल सकते हैं, जहां आपको रिव्यू आ सकते हैं. लोकल एग्जीबिशन, फोटो टॉक्स में आप पार्टिसिपेट करें. वर्कशॉप, फोटो वॉक, सेमिनार जरूर सीखें. हर फोटो वॉक, वेबिनार, सेमिनार से आप अगर एक चीज भी सीख के जो जरूर सीखेंगे, वो उतनी ही एडवांसमेंट आपको फोटोग्राफी की दे रहा है. और मैगजीन्स, आर्टिकल्स पढ़े, किसी को कॉपी ना करें, अपनी पहचान खुद बनाए. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. आप किसी एक से इंस्पायर होने चाहिए. हॉबी मेरी फोटोग्राफी थी. आई हैव बीन इंस्पायर्ड बाय भाटिया जी. और मेंटर वाली बात है, मेरे वो मेंटर रहे हैं. आदित्य अग्रवाल जी की गाइडेंसेस ली है. बट अगर आप एक को फॉलो करें तो आप ही उसमें अच्छे रिजल्ट्स लाएंगे. सो आप इंस्पायर होने चाहिए किसी एक शख्स से. उसकी क्वालिटीज, उसकी गाइडेंस, उसकी जो सीख है, उसे आप अक्वायर करें, सीखें उसे. पहले इंस्पायर करें अपने आप को, फिर उसकी जो सीख है उसे अक्वायर करें. और जो मेन पॉइंट, नीचे वाला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, बेसिकली दैट इज द थर्ड पॉइंट. आप पसीना बहाएं, आप परस्पायर करें. आप जब आपने किसी से कुछ इंस्पिरेशन ली और आपने कंपोजिशन या 12 एलिमेंट्स ले लिए, अब आप अपना पसीना निकालें, और जब आपकी फोटोग्राफी में निखार आ जाए, आप वो किसी को ट्रांसपायर करें. अगर आप वो किसी को सिखा सकते हैं तो आपके अंदर एक ट्रेनिंग गया, आपकी फोटोग्राफी के स्किल्स बढ़ गए हैं. दिल से जो आपको एडवाइस आती है, डोंट कॉपी, डोंट बी जेलस. सेल्फ स्टाइल को रियलाइज करें. क्रिटिसिज्म के लिए ओपन रहे, फीडबैक के लिए ओपन रहे. एक पिक्चर 1000 शब्द कह जाती है. आप ऑब्जर्वेशन करें. आज की जितनी भी पिक्चर है उनको ऑब्जर्व करके रियलाइज कीजिए क्या था. और भी जो लोगों की पिक्चर है उनसे आप कुछ और सीख सकते हैं. सो पिक्चरों को ऑब्जर्व करके रियलाइज करें. और किसी भी लोग को, किसी भी मेंटर को, किसी भी पीयर को, जहां उसको अप्रिसिएशन की जरूरत है उसे अप्रिशिएट करिए. किसी ने आपके ऊपर अच्छा किया, उसे थैंक यू कर दीजिए. सो दैट इज ग्रेटिट्यूड. And these are the finally last slides which are close to my heart. That is the old tea house in Chengdu, जहाँ बुजुर्ग लोग जो जिंदगी से हताश है या रिटायर हो चुके हैं और फैमिली के साथ
अलग हटकर टाइम काटना चाहते हैं दोस्तों के साथ, अनजानों के साथ, वो इस ओल्ड टी हाउस में सुबह 8 बजे आ जाते हैं और शाम को 6 बजे तक यहाँ रहते हैं। और नेचुरल लाइट फटी हुई छत, टूटी हुई छत के ऊपर से जो आती है, और जो लोगों के यहाँ पर एक्सप्रेशंस है या उनके जो अटायर है, वो एक क्लास इमेजेस आपको दे देती है। ये वो टी हाउस है, छोटा सा एरिया है, इसके आगे पीछे ओपन एरिया है, ऐसे ये लोग बैठे रहते हैं। और ये जो थर्मस लेफ्ट में ग्रीन कलर का देख रहे हैं, इस टाइप के अलग अलग थर्मस है जिसको ये रिफिल करते रहते हैं, थ्रू आउट द डे रिफिल करते हैं। और ये 1 RMB चाइनीज रुपीज में इनको, जो यहाँ लोकल लोग हैं उनको 1 RMB में ये टी मिलती है, और हमारे जैसे कोई भी विजिटर वहां जाए उनको ये 10 RMB में ये चाय मिलती है। ये टी हाउस का ओनर है, ये जो थोड़े एक्रोबैटिक्स इस टी केटल के साथ करते हैं, ये उसकी वाइफ है। द फैमिली इज रनिंग दिस, एंड दिस इज द वर्कर, वेरी ओल्ड वर्कर विद देम। ये लेफ्ट से अगर आप देख रहे हैं, टूटी हुई छत से लाइट्स आ रही है, स्मोक, सो दिस बिकम्स द पावर। जो स्मोक है, ऑरा है, विंटेज लुक्स आती हैं, ये पैटर्न्स बनते हैं यहाँ पर। थैंक यू वेरी मच। So basically, my presentation is finished here. Looking into the time, we have since 10 मिनट का स्टार्ट का we wait period था, so exactly 50 minutes में we have concluded our session. जिसके भी कोई क्वेरीज होगी वो ऑफलाइन या पर्सनल डीएम में मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अपनी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करना है, तो सिर्फ आप जो बेसिकली मैंने आपको ये बताया अभी, कि आप ये 12 एलिमेंट उनको आप फॉलो कर लीजिए। विनोद जी और पहले स्टॉप शेयर कर दीजिए, फिर अच्छा, आप बात करें। 1 मिनट। यस, स्टॉप कहाँ से होगा ये? नहीं, हो गया स्टॉप शेयर, हो गया। हो गया, हाँ हो हाँ। गया। अच्छा, अब जस्ट आई जस्ट वांट टू, तो जैसा मैंने अपनी पुरानी स्लाइड में 12 एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी जो टेक्निक्स के ऊपर बात किया था, आज कंपोजिशन के ऊपर बात किया था, और इसी को मूल मंत्र मानकर आप अपनी हर फोटो के ऊपर इसे अडेप्ट कीजिए, फॉलो कीजिए। और जो मेंटर वाली बात मैंने कही थी, आपका एक मेंटर होना चाहिए जो आपका मार्गदर्शन करे, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अगर आप एक गलत पिक्चर ले रहे हैं और वही आप स्टाइल अपना रहे हैं, तो 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद आपका स्टाइल वही रहने वाला है, उसमें कोई इम्प्रोवाइजेशन नहीं आनी। और अगर आप अपने पीयर से और अपने मेंटर से, सीनियर से कोई फीडबैक लेते हैं और उस फीड के लिए आप रिसेप्टिव होते हैं, तो आपकी फोटो के अंदर अलग निखार आएगा। इसी चीजों को लेते हुए हमारे को एक अर्ज महसूस हुआ, क्योंकि मेंबर्स ने फोटो वॉक में ये कहा कि ऐसी क्लासेस शुरू की जाए जिससे हमें सीखने का मौका मिले। तपस जब ये स्टार्ट हुआ था 11 साल पहले, हमारा सोल एम ही ये था कि हम बिगिनर्स को और लर्नर्स को और फोटो एंथुजियास्ट को फोटोग्राफी सिखाएं। ये हमने पहले भी बहुत किया है। यहाँ ट्रेनिंग क्लासेस 6 महीने की भी चली है, डिस्टिंक्शन भी दिलाई गई है। पास्ट 4-5 ईयर्स से अगर वो गैप रहा है, उसको अब हम रिवाइव करना चाह रहे हैं। तो दृष्टि जो अभी हमारा 2026 आ रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये तपस फोटो लैब की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है। इसके ये 2 सेशंस तो हो गए हैं। ये 2 सेशंस मिलकर टोटल ये बनता है मास्टर ऑफ द आर्ट ऑफ कंपोजिशन और आर्ट ऑफ फोटोग्राफी। तो इसके अंदर हमने ये जो किया, आप कैसे एक ऑर्डिनरी पिक्चर से एक वर्ल्ड क्लास पिक्चर बनाने के लिए मास्टरी कर सकते हो, वो हमारा मोटिव था। अब जो हर संडे, थर्सडे और संडे को हमने एक ये सोचा है तपस फोटो लैब के अंदर, कि हम मेंबर्स के वर्क 5-10 वर्क उनके व्हाट्सएप पे मंगाएंगे। जो मेंबर्स व्हाट्सएप पे ये फोटोग्राफ्स भेजेंगे, तो जो अगला हमारा संडे को सेशन होने वाला है, वो भाटिया जी इस सेशन को लेंगे। हम उन फोटोग्राफ्स के ऊपर ही ये 12 एलिमेंट्स जो है ऑफ कंपोजिशन और ये जो रूल्स ऑफ कंपोजिशन है, इनके ऊपर, उन फोटो के ऊपर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। त्रुटियां हम बताएंगे, उसने क्या कमी की और उसको पिक्चर को कैसे बेहतर बना सकता था। तो ये पिक्चरें, उसकी इमेजेस को, उसको एक स्किल्स
अडेप्ट करने का, अक्वायर करने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनेगा। सो बेसिकली तपस फोटो लैब सीरीज के अंदर दृष्टि तक जो ये थर्सडे और सैटरडे को क्लासेस होने वाली है, इसमें मेंबर्स के वर्क के ऊपर इम्प्रोवाइजेशन करना हमारा टास्क रहने वाला है। और हो सकता है कि वो इन्हीं वर्क के अंदर से एक ऐसी इमेजेस निकाल दे कि जब दृष्टि में वो एग्जिबिट हो, दे फील प्राउड अबाउट इट, एंड देयर पियर्स और जो भी विजिटर पंजाब कला भवन के अंदर आ रहा है, इफ ही स्टॉप्स एट दैट पिक्चर्स एंड कैरीज अवे द मेमोरीज, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फाइनली लास्ट वर्ड्स मैंने ये कहना चाहता हूँ कि एक फोटो को आप एक हफ्ता तक भी देखते रहो तो और कुछ समय के बाद आपके जहन में नहीं रहती, और एक फोटो को आप एक लम्हा भी देख लो, वो बरसों आपके जहन में रहती है। यही डिफरेंस है कि आपकी फोटो किस लेवल की होनी चाहिए। सो हमारी कोशिश यही है कि आपकी फोटो एक इस उस मुकाम पर पहुंच जाए जहां आप खुद भी उसको सराहें और सारे लोग और भी सराहें। वही आपका सबसे बड़ा अवार्ड होगा। सो बेसिकली द थिंग इज दैट कि सैलॉन का भी अगर हम साइड में रख लेते हैं, अवार्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द इंटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो इस दृष्टि के अंदर हर मेंबर्स की एक इंटेंट रहनी चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करे। सो विशिंग ऑल द मेंबर्स बेस्ट ऑफ लक फॉर द अपकमिंग तपस फोटो लैब्स। आई वंस अगेन डीप कोर ऑफ माई हार्ट, दिल से सब लोगों का मैं थैंक्स करना चाहता हूं जो आज इस एग्जीबिशन में आए। देयर इज अ गुड नंबर विच हैज ज्वाइंट एंड आई वांट टू थैंक ईच एंड एवरी मेंबर फ्रॉम द डीप कोर ऑफ माई हार्ट। और कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए, मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, भाटिया जी और मैं एज को फाउंडर हम हर पल हाजिर हैं। बाकी हमारे सीनियर्स भी, वी कैन बैंक अपॉन देम, एंड आई लुक फॉरवर्ड दैट एवरी मेंबर हु हैज लर्न फ्रॉम तपस कंट्रीब्यूट्स टू तपस। यही मेरा कहना है। ओवर टू यू भाटिया जी। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू विनोद जी। तो विनोद जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए, क्लैप कर सकते हैं सभी लोग। सो आज का सेशन इनका तो बहुत ही बढ़िया था। ऐसा मुझे लग रहा है जैसे गागर में सागर में कह सकते हैं। अभी हमारे होस्ट जो थे वो सावंत जी थोड़ा कहीं चले गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा ये कंडक्ट करना पड़ेगा, और प्रशांत को भी मैं बाद में बुलाऊंगा। सो आज के सेशन में इन्होंने जो रूल्स ऑफ कंपोजिशन और जो टिप्स शेयर किए, मुझे लग रहा है 10-12 साल के एक्सपीरियंस के बाद 1 घंटे के अंदर इन्होंने हमारे सामने इस आसान तरीके से, सिंपल तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग, आप सब लोग जितने भी हैं, खासकर जो नए लोग हैं, नए मेंबर्स हैं, वो यहाँ से कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे, सीखेंगे। जैसा विनोद जी ने बताया कि हमारा जो बेसिक मोटिव था तपस को बनाने का, यही है कि टैलेंट को ढूंढना और उनको उनको जो है फोटोग्राफी में आगे बढ़ाना, उनकी फोटोग्राफी को इम्प्रूव करना। फोटोग्राफी एक बहुत ही बढ़िया आर्ट है, हॉबी है, जो कि स्ट्रेस बस्टर का भी काम करते हैं और हमें नेम फेम एंड जो और भी चीजें दिलवाती है। सो आज बहुत ही अच्छे नंबर में आप लोग ज्वाइन किया, 18 के करीब करीब मेंबर। आज मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ। जैसा विनोद जी ने बताया कि हमारा जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, फोटो आर्ट को सिखाना। जो हमने सीखा हम सिखाना चाहते हैं। मेरा हॉबी शुरू से, मुझे 40 साल फोटोग्राफी में हो गए। और जैसा फर्दर हमारी प्लानिंग क्या है कि विनोद जी की गवर्निंग काउंसिल हमारा तपस की है कि महीने में हम कम से कम 8 क्लासें लगाएंगे, यानी हफ्ते में 2 क्लास। 1 घंटे की क्लास होगी, 55 मिनट की क्लास होगी, जिसमें जो भी बेसिक है, एडवांस है, ये सारी चीजें शेयर करेंगे टाइम टू टाइम। उसमें बहुत सारे हमारे और भी जो सीनियर आर्टिस्ट है हमारे तपस में ही है, उनका भी, वो भी सिखाएंगे। सो सीखने और सिखाने का यहाँ काम है। सो सबसे पहले जो लैकिंग था हमारे तपस में, इससे पहले 10-11 साल में हमने पहले कभी नहीं किया। 1-to-1 करते थे, मेरे घर में लोग आते थे, फोटो दिखाते थे विनोद जी से और भी। सो अब हम ऑनलाइन कर रहे हैं। ऑनलाइन आप अपनी पिक्चर शेयर कीजिए और उसके लिए एक्सपर्ट कमेंट्स आपको मिलेंगे, भी एडवाइस मिलेगी कि आप इस फोटो में ये नहीं, इस तरह से थोड़ा चेंज करेंगे तो बेटर हो जाएगा। देखिए, बहुत फोटोग्राफी लर्निंग के बहुत सारे तरीके हैं। आपके वीडियोस है, ऑडियोज है, लेक्चर्स है, वेबिनार्स है, और ये वर्कशॉप्स है जैसे आज हुई है। लेकिन एक और चीज है, वो है आपकी 1-to-1 एडवाइस, डिस्कशन, फीडबैक, इनपुट्स। आपकी पिक्चर में क्या कमी है, कहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, वो हम लोगों ने सोचा है कि ये थोड़ा सेशन कर रहे हैं। और दृष्टि से पहले अगर हो जाए तो 2-4 सेशन हो जाए तो आपको इसमें
बेस्ट वर्क निकालने का उसमें मौका मिलेगा। और मुझे याद है, मैं आज विनोद जी के साथ शेयर कर रहा था कि जब मैं बिगिनर था, स्टार्टिंग थी, मैं पता नहीं दिल्ली जाके, बेंगलोर जाके, बॉम्बे जाके सीनियर्स को अपनी पिक्चर दिखाया करता था। 100-200 छोटी छोटी पिक्चर ले जाते थे और चंडीगढ़ में भी दिखाते थे। उससे हमें उनकी फीडबैक से, उनके एडवाइस से, उनके गाइडेंस से हमारी फोटोग्राफी में इंप्रूवमेंट होती है। सो अगले कमिंग संडे 7 बजे 1 घंटे का सेशन होगा। आप लोगों ने जो हमारा फोटो लैब ग्रुप है, उसमें आपने 10 से 20 पिक्चर्स शेयर कर दीजिए। हम उस व्हाट्सएप ग्रुप को यहाँ शेयर करेंगे और आपके पिक्चर को जो कमेंट्स है, इनपुट्स है, क्या होना चाहिए, क्या बेटर है, सो यहाँ करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये सेशन बहुत ही यूजफुल होगा, बहुत फायदेमंद होगा। सो ये आप सब लोग ये अपने पिक्चर शेयर करना शुरू कर दी इकट्ठे, एक लॉट में 10 से 20 पिक्चर जितनी आप शेयर करना चाहते हैं, जिस पे आप गाइडेंस लेना चाहते हैं या दृष्टि में भी जो एग्जिबिट करना चाहते हैं, उसको आप लोग कर लीजिए। सो और आने वाले टाइम में और इस टाइप के बहुत सारे सेशन होने वाले हैं। बस आप सीखिए, और जो भी है इसके लिए नोट्स बनाने पड़ते हैं, और ध्यान रखना पड़ता है भी। विनोद जी ने जो 16 पॉइंट कंपोजिशन बताया है, रूल ऑफ कंपोजिशन, ये तो फॉलो करना ही चाहिए। हमारे बैक ऑफ द माइंड हमें सब कॉन्शियसली याद होने चाहिए कि जब आपका कैमरा हो तो थर्ड्स में ही काम करे, चला जाए अपने आप ही। सो थैंक यू वेरी मच। विनोद जी का भी एक बार फिर मैं तपस की तरफ से, सबकी तरफ से थैंक यू करना चाहता हूँ। और मैं अब हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर प्रशांत वर्मा, उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। आप अगर वीडियो ऑन कर लेंगे प्रशांत जी, तो मैं आपको स्पॉटलाइट कर दूंगा। आप वीडियो ऑन कर लीजिए प्रशांत जी, और आपके कमेंट्स। उसके बाद मैं हमारे जनरल सेक्रेटरी पल्लवी जी, और उसके बाद हमारे और भी। जी, ओवर टू यू प्रशांत जी, अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो प्लीज। भाटिया जी, एक अगर प्रशांत जी को बाद में कोई भी एक, जितने भी ज्वाइन किए हैं, हम्म। उनके एक दो दो पॉइंट्स फीडबैक के तौर पे ले लें आज हाँ तो। बिल्कुल, वो राइट राइट। तो मैं बिल्कुल सही विनोद जी। तो एक क्योंकि मिनट। जगी जी मुझे दिख रहे हैं, जगी जी चले जाएंगे तो उसका उनका भी कमेंट ले लिया अच्छा, जाए। उनको पहले पकड़। तो सर कहीं नहीं जा रहा जी, मैं यही हूँ। ओके, चलिए, सबसे पहले मैं जग्गी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। और जग्गी जी, क्या हाल चाल है? मैं सर ठीक, आप सुनाइए। मैं लेट पहुंचा सेशन में, तो इसलिए गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग नहीं हो पाई। कोई नहीं, देर है सबको दुरुस्त मेरी है। नमस्कार। नमस्कार। कैसा कैसा चल रहा है, कैसा लग रहा है? नहीं सर, बढ़िया बढ़िया सेशन, बढ़िया था। और बहुत मजा आया, क्योंकि अलग अलग पैटर्न और मतलब एक एक पॉइंट के ऊपर अलग अलग से तस्वीरों के साथ डिटेल्स में बात हुई। तो वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसी तरह समझ आता है। और बेसिक उसमें है, तो इसलिए बेसिक में ये सारी चीजें पता होना बहुत जरूरी है। थैंक यू जी। हाँ जी। हमारे बीच में संदीप सैनी जी है, बहुत सीनियर पोस्ट से रिटायर हुए गवर्नमेंट से। मैं संदीप सैनी जी, आपको कैसा लगा, आपके व्यूज? बहुत ही यूजफुल रहा मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी भी लर्निंग स्टेज में ही हूँ। मैं अपने आप को अभी लर्नर ही समझ रहा हूँ। तो धीरे धीरे जो है, मैं आपसे गाइडेंस लेके, आपसे सीख के और अपने इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। और जो भी आज विनोद जी ने हमें बताया, जो भी पॉइंट्स बताए हैं, मैं ट्राई करता हूँ इन सब चीज़ों का ध्यान रखने के लिए। जब भी मैं फोटोग्राफी के लिए जाता हूँ या कुछ अच्छी चीज़ मुझे पसंद आती है, अच्छा दिखता है, तो मैं इसकी फोटो लेना चाहता हूँ। तो आई ट्राई टू, आई मीन, कीप दिस थिंग्स इन माइंड। लेकिन अभी भी बहुत, आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो। थैंक यू सो मच विनोद थैंक जी। यू, थैंक यू। थैंक संदीप यू। जी ने कहा कि मैं अभी लर्नर हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, लर्नर लर्नर तो सारी जिंदगी रहना चाहिए। जी जी। मैं 40 साल हो गए मुझे फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन जितना मैंने पिछले 5 साल में सीखा, जिंदगी में कभी नहीं सीखा। हाँ, जी। अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि जिस दिन सीखना बंद हो जाएगा तो जीतना बंद हो जाएगा। तो हमें सारी बिल्कुल जिंदगी सीखते रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया आपका मैसेज है। बहुत तो बढ़िया। अब मैं इनवाइट करूंगा गोयल स्क्वायर, सबसे पहले सुभाष गोयल जी, अनम्यूट कर लीजिए। नमस्कार। थैंक यू टू विनोद जी। हम तो बिल्कुल ही जीरो लेवल पे हैं। विनोद जी ऐसे शख्स को देखना सुनना ही बहुत बड़ी चीज है। आज की सारी पिक्चर्स बहुत मेस्मराइजिंग थी। उन्होंने उसको पिक्चर्स के साथ जो एक्सप्लेन करा, उसका रियली बहुत ही इफेक्ट है।
और जो आगे प्रोग्राम बन रहा है कि सब लोग पिक्चर भेजेंगे, कमेंट्स होंगे, आई होप शायद हम कुछ सीख पाए। काबिल तो बहुत कम है, बट आई होप हम जरूर सीखेंगे, अडॉप्ट करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम। अशोक गोयल, अनम्यूट। आपका आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कर लीजिए। कोई चैलेंज है, कोई इशू है आवाज में, बोलिए। नहीं, हम सुन नहीं पा रहे। आप कोई नहीं, आप ट्राई करिए दोबारा। अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे जनरल सेक्रेटरी को कि वो फर्दर कार्रवाई आगे की ये करेंगे। ओवर टू पल्लवी। अनम्यूट कर पल्लवी, अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट कर लीजिए पल्लवी। हाँ, यस Am I audible? यस। ये जूम बहुत दिनों के बाद जूम यूज किया है ना, तो इसलिए पेशेंस से कहीं नहीं कर रहे थे। नमस्कार एवरीवन, मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी, थोड़ा सा busy इसलिए। और जो मैंने देखा, मैंने भी थोड़े दिनों से ब्रेक लेके रखी हुई थी, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं शायद से सीखूं, क्लास 1 2 में भी तो पहुंच गई हूँ। थैंक यू सर सो मच इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और सही कहा सर आपने कि एवरीवन हैज टू लर्न एवरी टाइम। हमेशा ही एक आर्ट ऐसी चीज है कि जिसमें कुछ ना कुछ नया इजाद होते रहता है। अगर हम सीखना बंद कर देंगे और हमें लगेगा कि हमें सब कुछ आ गया, तो हमारी ग्रोथ भी उसके साथ स्टॉप हो जाती है। तो वी आर ऑल ऑन द लर्निंग स्टेज ओनली। सर का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, यूजफुल नए लोगों के लिए भी और हमारे जैसे रूटीन में जो ब्रेक लेके आ रहे हैं उनके लिए भी। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू। पल्लवी जी, बाकी सभी को आप इनवाइट कर लीजिए, बाकी जो रह गए। यस सर, मैं अच्छा, ये विराज चौहान मेरे ख्याल से सर आपका ही लैब होगा ना? हाँ जी। डॉक्टर विराज चौहान एक मुझे दिखता है नाम। नहीं वो नहीं, आप नवजोत है, नवजोत से शुरू कर लो। नवजोत काफी ओके, समय बाद ज्वाइन किया, हाँ मैं ये तो छूट गया उनको। नवजोत जी, आपके ऊपर ओवर टू यू। हाँ जी, थैंक यू जी। बहुत बढ़िया आज का सेशन था। और मुझे मतलब पहले जो मैंने वो लगाई थी क्लासेस, तो उसमें कैमरे का पता ही नहीं था यूज़ कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा कैमरा यूज़ करने के बाद वो जो पॉइंट्स हैं कॉम्पोजिशन के रूल है, उनकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है। तो जैसे वो एक डिस्ट्रैक्शन, रिपीटिंग पैटर्न में जो डिस्ट्रैक्शन है, और ऐसे कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स बताए गए हैं। तो मैं अब उनको, जैसे कई रूल्स तो मैं यूज कर लेता था, पर कई रूल्स का ध्यान नहीं था, तो ऐसे सारे रूल्स पता चले हैं। अब फिर से उनको फिर से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए थैंक यू कि इतना अच्छा सेशन हुआ। और दूसरा एक वो जो भाटिया सर ने कहा कि कोई फोटो लैब ग्रुप है, मैं वो अभी मेरे को लग रहा है मैं उसमें हूँ नहीं, तो फिर काइंडली मेरे को भी उसमें ऐड कर दिया जाए, जिससे कि मैं भी अपनी फोटो शेयर कर दूँ। शांति, इनको ऐड कर दें। शांति, या ओके। राजेश सर, over to you. हाँ, नेक्स्ट। राजेश सर, are you there? हाँ जी, Yes, please. हाँ जी। लाइक लास्ट टाइम, इस बार फिर अगेन बहुत ही एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन थी अपने विनोद जी की। लास्ट टाइम एलिमेंट्स पे हमें बताया गया है, नाउ 16 पॉइंट्स ऑफ कंपोजिशन। वंडरफुल विनोद जी, बहुत ही यूजफुल है ये। और ये हमने जो अटेंड किया है, जब भी फोटो खींचेंगे कुछ ना कुछ बैक ऑफ माइंड पे रहेगा इनमें से। एंड दिस इज वेरी यूजफुल। थैंक्स अ लॉट विनोद जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ये लिनोवो करके एक आ रहा है नाम। लिनोवो, ये तो हो गया लगता है। सुभाष गोयल जी। सुभाष गोयल। हाँ, अच्छा, इनका हो गया। नेक्स्ट अनूप जी को भी पूछ लेते हैं। अनूप जी है, पल्लवी जी। अनूप जी अभी नहीं है। अशोक सर आप ये इनका हो गया। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ओह गुड, आवाज आ आवाज आ रही है? या हाँ जी, आ रही है। आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रही आवाज? आ रही आ रही। आ रही हाँ है। गुड इवनिंग सर। जो फर्स्ट पिछले लेक्चर हमने सुना उसमें 12 एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी, तो वो बड़ा हमारे को बड़ा बेनिफिशियल लगा।
तो आज जो 16 रूल ऑफ कंपोजिशन है, इसमें भी हम 1-2 रूल तो हमें पता थे, बाकी नहीं पता थे। तो बड़ा फोटोग्राफी देखी, बड़ी अच्छा लगा, बहुत मजा आया, और आगे सीखने के लिए भी हमारे को बहुत सारा मटेरियल मिल गया। हम अब ट्राई करेंगे इनको रूल को एक फोटोग्राफी में देने के लिए, और आगे से आपसे जो एडवाइस है वो लेते रहे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे प्रेस सेक्रेटरी हेमंत सर से। वो जी के दोनों सेशन बहुत ही ग्रेट थे। अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। चलिए हेलो। पल्लवी जी आगे चलिए, इतना नेक्स्ट। ओके, थैंक यू सर। एंड दिस इज मेरे ख्याल से कोई अच्छा, मेरे ख्याल आप मोबाइल पे होंगे पल्लवी जी, मोबाइल पे ज्यादा दिखता नहीं है तो। यस यस, ये थोड़ा स्क्रीन वो है ना, मेरे इसके ख्याल से। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे प्रेसिडेंट प्रशांत जी से फॉर वोट ऑफ थैंक्स। प्रशांत जी से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो भी यहाँ बोला है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि तपस ग्रुप में भी थोड़ा सा आपके जो फीलिंग्स है ग्रेटिट्यूड मेंटर के लिए, थोड़ा सा तपस पेज पे भी थोड़ा लिख दीजिए। बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं और हमें अपने मेंटर का थैंक यू करना चाहिए। दूसरी बात है कि ये हमारा सेशन रिकॉर्ड हो रहा है आज। हमने इसमें जूम प्रोफेशनल प्रो प्लान पे हमने इन्वेस्ट किया तपस ने आप लोगों के लिए, और ये हमारे यूट्यूब चैनल है, उसमें पुराने भी हमारे बहुत सारे वीडियोस है, उसमें ये रिकॉर्डिंग रहेगी, उसमें आप रिकॉर्डिंग दे देंगे। और इसका लिंक रिकॉर्डिंग का आपको तपस ग्रुप में आज 1 घंटे के बाद तपस ग्रुप में आपको लिंक इसका मिल जाएगा। तो तपस में अपनी फीलिंग्स जरूर शेयर करिए। तो जैसे पल्लवी जी ने इन्वाइट किया है, हमारे जो प्रेसिडेंट है प्रशांत वर्मा, वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए उनको इन्वाइट करते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस। हेलो, गुड इवनिंग सबको। और वाकई में जैसे लास्ट सेशन था, ये उससे और अच्छा सेशन रहा आज का। तो दिल से विनोद सर को थैंक यू, और सभी मेंबर्स को जिन्होंने आज ज्वाइन किया उन सबको भी थैंक यू। भाटिया सर, आपकी गाइडेंस ऐसे मिलती रहे, बाकी सभी मेंबर्स का ऐसे साथ मिलता रहे। तो ये बात सही कि लर्निंग जो है वो लाइफ टाइम चलती रहती है, जीवन भर कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो सीखते रहेंगे और साझा करते रहेंगे अपना एक्सपीरियंस। बाकी सभी मेंबर से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि काम भेजिए अपना, रजिस्ट्री को सक्सेसफुल बनाइए। और बस थैंक यू सबका, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओवर टू पल्लवी जी। Thank you, sir. Thank you. And whole session went very well. Thank you once again, विनोद सर आपका। Thank you very much. 20 तारीख नजदीक है। I also request everyone कि प्लीज अपना वर्क सेंड कीजिए, क्योंकि 19 अगस्त को हमारा एक मेगा फेस्टिवल है। राइट। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you everybody. Thanks a lot.